Statement of cash flows. And now we are on the concluding module in which we will practice a comprehensive scenario. Well, this scenario is although like a detailed one in which we will see a balance sheet and profit and loss account and certain other information would be given. But like we will solve this question based on direct method. Okay, so we'll see how these calculations will be done. Well, we know very well that when we say direct method, the direct method is in fact used to calculate cash generated from operations. Okay, rest of all other treatments remain same. Either we are using direct method or we are using indirect method. So direct method में हम क्या कर रहे हैं? We are in fact focusing on the cash flows relating to the customers, suppliers, employees, and other operating expenses. Well, उसके करने के बाद rest of the things would remain same. Well, the scenario is in front of us, and in this scenario, we see there is a balance sheet, statement of financial position on 31st December 2020, in which there is property, plant, and equipment. Obviously, this is net book value. Okay, the opening balance and closing balance of property, plant, and equipment is provided. How we get to know this is net book value? Because accumulated depreciation is not separately given here. It is the net balance which is given in the balance sheet. So it is net book value. Then investment in equity shares of investee company. In the opening date, there was 0. And like in the closing date, it is 8.5 million, which shows कि हमने during the year investment purchase की होंगी. So this would be cash outflow. Stock in trade, trade receivables, and cash balances. These are the 3 current assets with us. And then this is the total amount of the asset side. Well, share capital, retained profits. These are the share capital and reserves. Then we have revaluation surplus with us. On the opening date, there was 0. On the closing date, there is 10,000. So remember that this 10,000 is because of revaluation of fixed assets during the year. Here it's written revaluation surplus of property, plant, and equipment. Then comes debenture and loan from lender bank. So both of these two are non-current liabilities. It is given here. Well, here we see that on the opening date there was loan of 6,000. On closing date, that is 0, means that we have paid this loan during the year, this cash outflow. Well, then comes interest payable, opening and closing balance, trade payable, opening and closing balance, accrued operating expenses, opening and closing balance, and provision for taxation. All these are current liabilities. Next, what we see that there is a statement of profit loss for this year given, in which sales, cost of sales, gross profit, operating expenses, other incomes, operating profit, interest expense, profit before tax, and then income tax expense, and finally profit for the year, means profit after the tax is given. There are some additional information which is very important in its working. It is telling us that 60% of the sales were made on credit. Okay, so we have to be very much careful while calculating cash received from debtors or trade debts, that 60% of the sales are on credit. Company maintains a provision for doubtful debt, that is 6%. Okay, so what we saw in our earlier balance sheet, that trade receivable amount, which is 68,000 at the end of this year and 56,000 at the end of previous year, that is net of provision for doubtful debt. Remember, as I told you over here in property, plant, and equipment, that provision for depreciation has already been subtracted from this amount. In the same way, provision for doubtful debt has already been subtracted from the trade receivable. So that is 6%. I'll tell you that how to take this challenge while calculating the gross amount of the trade receivables. Well,
During the year, trade receivable of 7 million were written off. Okay, we got the point. Then depreciation expense for the year was 22.5 million. Okay, and other income comprising of gain on disposal of vehicle is 3 million, whereas that was disposed of for 12 million. So cash inflow is 12 million, and what we got as surplus as profit on disposal is 3 million. So obviously you can work out easily, it's just oral, that अगर आपको 3 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है और 12 मिलियन रिसीव हुआ था, तो इट मींस ऑब्वियसली वो 9 मिलियन का एसेट था जो आपने 12 मिलियन का सेल किया और यू अर्नड प्रॉफिट ऑफ 3 मिलियन. वेरी वेल. मेंटेनेंस इनकम इज 8.2 मिलियन. ये अदर इनकम में शामिल है. इफ यू लुक इनटू the other income of 11.2 million, you get to know कि 11.2 million में 3 million की gain है and 8.2 million की आपकी जो है वो maintenance income है. All right. So very first thing that we will be working out over here is cash collected from customers. Okay. Obviously उसके लिए हमें debtors का account पहले बनाना होगा, जिसमें कि yes, we will put credit sales first. And you saw over there in the question that credit sales are 60% of the total sales. तो ये देख लीजिए कि हमारे पास जो total sales थी उसका 60% हमने credit sales 163,800 ले लिया. और जो कैश सेल्स थी यानी कि रेस्ट ऑफ द 40% आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर की जहाँ पे हमने वर्किंग करनी है वहाँ पर हमने उसको कैश कलेक्शन के तौर पर डायरेक्टली ले. वेल, अब करना ये है कि हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की अमाउंट तक जाना है. उसके लिए डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस वी नीड एंड डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस वी नीड. डू रिकॉल that 6% provision for doubtful debt was subtracted to reach at the figure जो कि बैलेंस शीट में नजर आ रही थी. इसको ग्रॉस अप करें. कैसे ग्रॉस अप करेंगे कि जो बैलेंस शीट में अमाउंट नजर आ रही थी ट्रेड रिसीवेबल की वो 94% थी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 6% ऑफ द बैड डेट्स प्रोविजन. गॉट द पॉइंट. तो क्या करेंगे, इसको 94 से डिवाइड करके व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100 यू विल गेट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ डेटर्स. वेल, दिस इज व्हाट यू कैन सी हियर कि ये इसको ग्रॉस अप किया आपने डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस को और ये आपने क्लोजिंग बैलेंस ग्रॉस अप कर लिया. एंड देन टू लुक इनटू द अदर इंफॉर्मेशन पोर्शन कि हमारे बैड डेट्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट्स रिसीवेबल्स को राइट ऑफ किया था दोज वर 7 मिलियन. रिमेंबर यहाँ पर हम रुपीज इन मिलियन में इसको बना रहे हैं तो इसलिए हम उसे 30 साइड पर करके बाकी वी विल पुट ओवर हियर 7,000. वो बैड डेट्स जो राइट ऑफ हुए ड्यूरिंग द ईयर, वेल वो भी हमने यहाँ पर अकाउंट फॉर कर लिए. तो ये है जो हमें कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम द डेटर्स दैट वी विल प्लेस हियर इन द वर्किंग ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर. और एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं वो भी तो हमारे कस्टमर्स हैं. तो जब हम कह रहे हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स तो वी विल बी वर्किंग आउट cash collected from the credit customers, which are the cash received from debtors, cash collected from the cash customers, which are the cash sales, straightforward cash sales, and cash collected from the customers relating to our maintenance services. उनसे भी cash ले लिया तो total amount of cash collected from customers हमारे पास 261,434 की कैलकुलेट हो. वेल, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमें करना है दैट इज अबाउट कैश पेमेंट टू सप्लायर्स. अब देखिए सप्लायर्स मींस हमारे जो क्रेडिट परचेजेस जिनसे करते हैं. ओके, अब वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस शीट लायबिलिटी से मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जब इसको दोबारा से देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दी हुई है, परचेजेस की अमाउंट नहीं दी हुई. तो यू आर स्मार्ट एनफ टू कैलकुलेट परचेजेस अमाउंट बाय रिवर्स वर्किंग. So just have a look on it कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट में आपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की तो यू गॉट द अमाउंट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर. वो परचेजेस आपने क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर प्लेस किए. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास आ गए और कैश
पेड टू द क्रेडिटर्स 197,500, आपके पास ये वर्किंग शो हो गई। कैसे आपने ये कैश पेड टू सप्लायर्स कैलकुलेट किया? वेल, ये दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश पेड टू सप्लायर्स कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैश आउटफ्लो फॉर एम्प्लॉयज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके लिए सबसे पहले तो ये देखें कि आपको जो प्रॉफिट लॉस में फिगर दी हुई है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर दी हुई है, जो कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उस साल के, जिसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस मौजूद हैं। अब वो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको अदर इंफॉर्मेशन में बताया हुआ कि डिप्रीसिएशन 22.5 मिलियन की, वो हमने यहाँ पर उसे माइनस कर दिया क्योंकि हम पहुंचना चाह रहे हैं उस अमाउंट पे जो कैश बेस्ड एक्सपेंस है, जिसके लिए कैश पे किया जाता है और एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। वेल, उसके बाद एक बैड डेट का एक्सपेंस भी जो है वो भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट लॉस को चार्ज किया। अब ये 7766, ये जो अमाउंट है 7.766 मिलियन की, कैसे कैलकुलेट हुई? क्योंकि आप सोच रहे होंगे तो बैच तो हमारे 7,000 के हुए थे। वेल, तो भाई जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन हमारे पास है उसकी भी तो आपने रिफ्लेक्शन दिखानी है। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रॉस अप किया था 94,000 से 100% को, 94% से 100% को, उसको आप 94 से 6% तक जाएंगे तो आपके पास प्रोविजन का बैलेंस आ जाएगा। ये 6/94 आपने किया, प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसकी वर्किंग के साथ यू गॉट दिस एक्सपेंस अमाउंट। ओके, तो ये वो है जो ड्यूरिंग द ईयर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को चार्ज हुआ था। उसको आपने जब टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस किया तो आपके पास एक्सपेंस वो आ गए जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे किया हुआ था और जो आपने एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट लॉस में शो किए थे। वेल, अब आप एक्रूवल की एडजस्टमेंट को जब वर्कआउट करेंगे तो ओपनिंग एक्रूवल बैलेंस, क्लोजिंग एक्रूवल बैलेंस, बीइंग लायबिलिटी अपनी अपनी जगह पे नजर आ रहा है, और ये वो अमाउंट है एक्सपेंस की जो कि आपने प्रॉफिट लॉस को डेबिट की और इधर से एक्सपेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट की क्लोज करने के लिए। बैलेंसिंग फिगर यू गेट 14.5 मिलियन, दिस इज कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसी के अंदर सैलरीज वेजेस भी शामिल हैं, इसी में आपके तमाम एक्सपेंसेस शामिल हैं। वेल, अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे आपको अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई है उसके अंदर हमें वो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, और जो हमारी एम्प्लॉई, और अगर आप उसको सारी वर्किंग यहाँ पे करें तो ये हमारे पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर भी आ गया, कैश पेड टू सप्लायर भी आ गया, कैश पेड टू ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज भी जो पीछे वर्किंग की हैं। So what does it show? कि cash generated from operation is 49.434 million. Okay. नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट है ये, और उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया और इनकम टैक्स जो पे किया। अब ये वर्किंग आपको यहां पर नजर आ रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया और ये इनकम टैक्स का अकाउंट बनाया, ये टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट। ओके, वेल, तो ये हमें वही ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन और एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट के साथ हमें जो है वो कैश पेमेंट की फिगर मिल रही है इनकम टैक्स की, ये आपके पास मिल गई, और कैश पेड इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया जी नेट कैश आउटफ्लो और इनफ्लो। व्हाट इज दिस? दिस इज इनफैक्ट नेट कैश इनफ्लो, ओके, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस नेट बुक वैल्यू पर है वो लिया, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से लिया, डिप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इसी में हम चार्ज कर देंगे क्योंकि नेट बुक वैल्यू पर ये अकाउंट बन रहा है। और जो उस वक्त मैंने सवाल पढ़ने के दौरान आपको बताया था कि 9,000 इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट दैट वी सोल्ड फॉर प्रॉफिट, हमने 12,000 का उसको बेचा था, ये नेट बुक वैल्यू और ये गेन। ओके, यहां से ये मैंने जुबानी वैसे आपको उस वक्त वर्कआउट कर दिया था, एटी अकाउंट भी बना दिया, और फिर रीवैल्यूएशन भी आपको मैंने बताया था ड्यूरिंग द ईयर जो ही।
इन सब के करने से हमें ये मिल गया कि 60 मिलियन का हमने कैश पे किया फॉर परचेज ऑफ एसेट. दिस इज है. डिस्पोजल प्रोसीड यहाँ से 12 मिलियन की आपकी नज़र आ रही है. और इन्वेस्टमेंट इन परचेज ऑफ आपके शेयर्स जो थे वो 8.5 मिलियन की कैश आउटफ्लो, एंड यू गेट टोटल कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ 56.5 मिलियन. वेल, ये सिनेरियो हमारा अब आगे चला गया तीसरी हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसको डिस्कस करने के लिए. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने देखा कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल के पैसे रिसीव हुए थे वो आ गए, डिबेंचर की रिडेम्पशन कैश आउटफ्लो हो गई और लोन रीपेमेंट. तो ये टोटल हमारे पास 13 मिलियन का कैश आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके, वेल, अब जब आपने इन सब को क्लब किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो व्हाट यू गेट, this is the amount which is net cash outflow during the year representing all these three activities. And इसमें opening cash and cash equivalent 48 million का आपने ऐड किया तो you left with this, and this is exactly the same amount जो कि आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस की नज़र आ रही हैं. ये नेट जो ड्यूरिंग द ईयर कैश इनफ्लो है उसके साथ आपने जब इसे मैच किया नेट कैश आउटफ्लो, so you get the closing balance. Well, this was the comprehensive scenario in which like we learned कैसे आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को वर्कआउट करना है. आपकी प्रैक्टिस इसमें भरपूर रिक्वायर्ड होगी और इसी तरह के क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर लेक्चर नोट्स, इन योर स्टडी मटेरियल, जो आपको जरूर करना. So that's all about this statement of cash flows module. Thank you.